Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine. And now today we will start a very new topic. It is called determinant, and determinant is related to matrix. And I think you know that all the terms which are used in matrix chapter. And there are many videos which I made in topic matrix. And now today we will discuss about determinant. So what is determinant? Determinant is a special type of matrix which gives you a finite value. It means determinant is a square matrix which gives you finite value. डिटरमिनेंट एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो आपको एक फाइनाइट वैल्यू देती है. तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. डिटरमिनेंट या तो 2/2 की होगी, या 3/3 की होगी, या 4/4 की होगी, या 5/5 की होगी. लाइक दिस, सपोज इट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिटरमिनेंट. इट इज a 2/2 डिटरमिनेंट. And now what is the process to find the value of this determinant? इस determinant की value find out करने का process मैं आज आपको बताने वाला हूँ. 2/2 मैट्रिक्स को हम किस तरह से finite value find out करेंगे और 3/3 की हम किस तरह से value find out करेंगे. तो now let's see what is the process to find the value of this determinant. You just multiply these two values. 2 4s are 8, and then you apply the minus sign, and then you multiply this 5 with 1. So 8 minus 5 is equal to 3. So I think it is very simple way to find the value of determinant. And now similarly, what is the way to find the value of 3/3 determinant? Suppose that it is any example of 3/3 determinant, and now I will find you what is the value of this determinant. अब हमें इसकी value find out करनी है. तो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले, यानी किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा. यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में साइन कन्वेंशन इज अ important thing. Okay, so what is this sign convention? Whenever you expand any determinant, then you always follow this sign convention. These are the some positive sign and negative sign in alternative mode. Okay, these are the sign convention. It is for first and second and third. There are 9 elements in this determinant. And now how many ways to expand this determinant? There are 6 ways through which you will find the value of this determinant. यहाँ पर टोटल मिला के 6 मेथड है जिनके थ्रू आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. अब वो 6 मेथड कौन से हैं? You always find these 6 method, and what is these 6 method? You find the value of this determinant along to the first row, along to the second row, along to the third row, and similarly along to the first column, along to the second, and along to the third column. So there are total 6 methods through which you will find the value of this determinant. And now I will tell you what is the process to find the value of this determinant. And I always find the value of this determinant along to the first row because it is my favorite, and I think it is also your favorite. Okay, so what is the process? There are 3 in first row, so you just write here 3, and you remove the row and column in which this 3 is come. यानी आपको ये 3 जिस रो में आ रहा है उसको एलिमिनेट करना है, और जिस कॉलम में आ रहा है इसको एलिमिनेट करना है. इट मींस यू एलिमिनेट दिस रो एंड कॉलम and write the remaining 4 values. और ये जो 4 values आपको दिख रही है वो यहाँ पर लिख देनी है 2 4 3 3. I think it is very simple for us. ये आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका होगा. अब आगे हम 4, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो आप माइनस का 4 लिखेंगे. तो माइनस का 4 आपने लिखा, and then you again remove this row in which this 4 is come and this column. So the remaining values are 1 4 2 3, and then you just write 5 with positive sign because यहाँ 5 है, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 5 आएगा. एंड अगेन you remove this row and column, so remaining these 4 elements are come 1 2 2 3. I think you learn how we expand this determinant. मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने ये वैल्यूज लिखी है. यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आपको हटा देना है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको इस तरह से आपको डिटरमिनेंट 2/2 की डिटरमिनेंट में लिख देना है. अब आगे का प्रोसेस वही सेम है जो भी आपने पहले इस वाले एग्जांपल में किया. यू जस्ट मल्टीप्लाई देम. 3 2 6, 4 3 12,
and then minus 4, 3 1 जा 3 and 4 2 जा 8 plus 5, it is 3 1 जा 3 and 2 2 जा 4, and now you simplify it, it is 6 minus 12 is minus 6, it is minus 18 because you multiply this minus 6 with 3, it is minus 5 minus 4 is plus 20, and then it is minus 1 and plus 5 is minus 5. So your final answer is come 18 minus 5 is 23. So minus 3 is your answer of this determinant. एंड नाउ अगर आप ये कहोगे कि माइनस में आ सकता है क्या आंसर, तो डेफिनेटली आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट की डेफिनेट वैल्यू होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और माइनस 3 आया। अब मैं इसी डिटरमिनेंट को किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि क्या उसका भी आंसर, उस पैटर्न से भी आंसर माइनस 3 आएगा या कुछ और आंसर आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। This time I will find the value along to the third column. Okay, this first column, it is second column, and it is third column. So now I will find along to the third column. It is the first method, and now we will discuss about second method. In third column, first value is 5, so you just write 5 here, and then you remove this column and this row. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है 5 जिस रो में उस रो को हटा देना है और जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा देना है, और जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज है आपको यहाँ लिख देनी है 1 2 2 3। उसके बाद 4, ये 4 माइनस का आएगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो आपने -4 लिखना है और फिर वापस से इस कॉलम को और इस रो को हटा देना है और बाकी रिमेनिंग 3 4 2 3 यहाँ लिख देना है, एंड देन प्लस साइन आएगा इस 3 के साथ, तो +3 लिख दिया और वापस से आपने इस रो को और इस कॉलम को हटा दिया, 3 4 1 2 आपने लिख दिया। अब आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है उसी पैटर्न से, 3 - 4, देन इट इज 9 - 8 एंड देन इट इज 6 - 4। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, ये माइनस का 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 9 में से 8 गया तो 1, माइनस का 4 आएगा और 6 में से 4 गया तो 2, 3 2 जा 6 आएगा, तो 5 and 4 9, 9 में से 6 गया तो माइनस का 3। तो आपने देखा वापस से आंसर वही आया जो पहले था, -3 यहाँ आ रहा था और -3 यहाँ आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे फर्स्ट रो के अलोंग फाइंड आउट करो या थर्ड कॉलम के अलोंग फाइंड आउट करो, यू ऑलवेज गेट द सेम आंसर। जो यहाँ आ रहा है -3, वैसे ही आपके इन 6 मेथड से जब भी आप एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द वैल्यू थ्रू विच you will find the some values. Now let's see. Now next topic is which are totally related to with determinant is minor and cofactor. तो minor and cofactors के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि minor क्या होते हैं, cofactor क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं कि minor and cofactor both are gives the finite value again because these are totally linked with determinant. तो जब डिटरमिनेंट ही आपको फाइनल वैल्यू दे रही है तो डेफिनेटली माइनर और कोफैक्टर भी आपको फाइनल वैल्यू ही देंगे, बट इनको फाइंड आउट करने के कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं, वो मेथड मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज माइनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए एग्जांपल ऑफ डिटरमिनेंट। सपोज इट इज द एग्जांपल ऑफ ए जनरल डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइनर। अब हम माइनर का डिस्कशन करेंगे कि माइनर क्या होता है। सिंपली माइनर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दो और कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली देयर आर सम बुक्स माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ओके, सो नाउ देयर आर 9 माइनर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। There are 9 elements in determinant, so there are 9 minors, यानी हर एलिमेंट का अपना अलग अलग माइनर होता है और इसी तरह से हर एलिमेंट का अपना अलग अलग कोफैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे इस A11 एलिमेंट का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M11 से, और बहुत ही सिंपल तरीके से। इट इज नॉट ए वेरी टफ टॉपिक, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, सो यू डोंट कंफ्यूज अबाउट देम। आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है जब भी आपको माइनर और कोफैक्टर का कुछ भी टर्म्स एग्जामिनेशन में आता है, then you don't make any mistake. Okay, it is very simple. आपको बस ये करना है कि आपको इसका A11 का माइनर निकालना है, तो आपको ये कॉलम और ये रो हटा देनी है और बाकी जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं
वो यहाँ लिख देने हैं बस, दैट्स ऑल। इट इज़ ए वेरी सिंपल। एंड नाउ सिमिलरली M12, अब M12 का भी आपको यही करना है। ये M12 है, तो आप ये एलिमेंट है, इसका माइनर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, तो जो बचे A21 A23 और A31 और A33, इट इज योर माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। सिमिलरली 4 एलिमेंट M13, तो ये और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर A21। अब मैं थोड़ा तेजी से लिख सकता हूँ, शायद आपको समझ में आ गया हो कि आपको रो और कॉलम ही उठाना है केवल। सिमिलरली फॉर M21, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये वाली रो ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा A12 बचेगा और A13 यहाँ ऊपर बचेगा, उसके बाद A32 एंड A33। अब हम आगे बढ़ते हैं, M22 की तरफ आते हैं। M22 में ये रो हट गई और ये कॉलम हट गया, तो A11 बचा, A13 बचा, और इधर से हमने ये A3 बचा, A31 और A33 बचा। ओके, so these values are left when you remove this column and this row। अब उसके बाद आ जाइए आप M23 की तरफ। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो हट गया, ये चारों एलिमेंट बचेंगे A11 A12 एंड A31 A32। एंड नाउ फॉर A31 एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट्स आपके बचे, कौन कौन से A12 A13 एंड A22 A23। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज M32, यानी इसके लिए ये हट गया, ये 4 एलिमेंट्स बच गए A11 A13 एंड देन A21 A23 एंड द लास्ट। अब हम लास्ट, ये हट गया था और ये हट गया था, तो ये बच गए। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास बचा A33, सो इट इज लास्ट नाउ। तो ये चारों एलिमेंट बच गए। तो जहाँ तक मुझे लगता है माइनर में ऐसा कोई खास वर्क नहीं है, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है कि आप इसमें मिस्टेक कर पाओ। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक माइनर। so these are the 9 minors। okay, you see that these are the 9 minors and each element has its own minor, and similarly we will find the value of cofactor। so now what is the difference between minor and cofactor, ये भी तो माइंड में आना चाहिए कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो there are no big difference, you just replace this m with a to find the value of cofactor। तो जब भी आपको माइनर से कोफैक्टर निकालना है, तो वैल्यूज तो वो की वो ही रहेंगी, वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा तो किसका आएगा, डिफरेंस केवल आएगा साइन कन्वेंशन का। यानी इन कोफैक्टर्स वी विल यूज साइन कन्वेंशन। एंड व्हाट इज साइन कन्वेंशन, इट इज ऑलरेडी told by me, it is plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus। so these are the sign convention which are used to find the value of cofactor। यही साइन कन्वेंशन आपको हमेशा यूज करने हैं। जब भी आपको 3/3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आपको इसी तरह से साइन कन्वेंशन यूज करने होते हैं। और जब भी आपको कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो भी आपको इसी तरह से साइन कन्वेंशन यूज करने होते हैं। नाउ लेट्स सी, ये A11 है, ये वाला एलिमेंट है तो प्लस का ही आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट माइनस का आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर A13 पर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस में रहेगा, A21 में माइनस का साइन आ गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस का ही रहेगा, फिर वापस A23 पर माइनस का साइन आ गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वापस प्लस हो गया। A32 पर ये यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और लास्ट यहाँ प्लस है तो प्लस का ही रहेगा। देयर आर नो चेंज। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस साइन कन्वेंशन। अब मुझे लगता है कि आप साइन कन्वेंशन समझ गए होंगे। तो माइनर और कोफैक्टर बोथ गिव द सेम वैल्यू, बट देयर आर स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइन। माइनर में साइन कन्वेंशन का यूज बिल्कुल नहीं होता, याद रखना, कोफैक्टर में होता है। सो इट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस डिफरेंस। लेट्स सी। अब कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कई मतलब टीचर्स या कई बुक्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा होता है कि अगर ये आई और जे, जो ये सफिक्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आई एंड जे। जैसे कोई मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आई एंड जे कहलाते हैं। अगर इस आई और जे का सम इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होंगे, नो साइन चेंज। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। और अगर आई और जे दोनों का सम ओड आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन 100% चेंज हो जाएगा। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इधर आप समझ लीजिए। यहां पर आप ये दोनों सफिक्स हैं, इन दोनों को ऐड करके देखिए।
तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन आ रहा है, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ ऑड आ रहा है तो साइन चेंज हो गया। इन दोनों का सम 4 आ रहा है तो ये इवन हो गया, साइन चेंज नहीं किया। यहाँ ऑड हो गया क्योंकि 3 होता है सम, तो साइन चेंज हो गया, यहाँ नहीं हुआ। तो दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स। तो इस तरह से भी आप साइन चेंज कर सकते हो। इट इज द सेकंड ओपिनियन। बाकी आप ये जो आपके सामने है इसके थ्रू भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल। अब मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और डिमांड करता है उसके अंदर कि सपोज देयर आर ए डिटरमिनेंट एंड you will find the value of this determinant by using some, I think by using second column and by using the cofactor of third column, by using the cofactor of third row and second row and so on. Okay, so these types of demands are come in some questions. So यहाँ हमारे पास क्या डिमांड है? यहाँ हमारे पास ये डिमांड है कि सेकंड कॉलम्स के कोफैक्टर्स का यूज हमें करना है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेयर इज सेकंड कॉलम? ये रहा सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम क्या क्या कहते हैं? तो नाउ यू लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड कॉलम का ये जो एड्रेस है 5 का वो क्या है? इट इज द A11, इट इज A12, ये A12 है। उसके बाद इसका एड्रेस क्या है? A22 है। और इसका एड्रेस क्या है? इट इज A31, सो इट इज A32, ये A32 है। These are the address of these elements. ये तीनों एलिमेंट जो सेकंड कॉलम के अंदर, इट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम, इट इज कॉल्ड सेकंड कॉलम एंड इट इज कॉल्ड थर्ड कॉलम। सो these are the address. And now it is very important, what is the cofactors of these elements? अब इनके cofactors क्या होंगे? Means A12, A22 and A32. So what is the cofactor of A12? तो A12 ये रहा, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। These 3, 5, 1, 2 left, these 4 elements are left and after that A22, तो यहाँ पर ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। 1, 7, 1, 2 इज लेफ्ट, 1, 7, 1, 2 एंड देन A32 में ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो 1, 7, 3, 5 रिमेनिंग रह जाएगा। 1, 7, 3, 5 जब आप 3, 2 लोगे तो ये और ये हट जाएगा, 1, 7, 3, 5 रह जाएगा। सो अब मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वी डोंट यूज हियर साइन कन्वेंशन। यस, आई डोंट यूज द साइन कन्वेंशन। तो मुझे अब साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है और साइन कन्वेंशन भी यहाँ यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा ये 1, 2 है, ऑड है, तो यहाँ डेफिनेटली माइनस साइन आएगा। यस, 100% माइनस साइन आएगा। यहाँ इवन है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड देन यू सी देयर आर ऑड, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। एंड नाउ यू सिंप्लीफाई इट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। इट इज 6 minus 5, okay, then it comes -1 and now here it is 2 minus 7, that is -5 and similarly it is 5 minus 21। तो अगर आपने 5 में से 21 लेस करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 16। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ दीज कोफैक्टर्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एलिमेंट्स। ये आपके इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हो गए। अब जब भी आपको किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर आप किसी के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ध्यान रखना, एलिमेंट्स को ही उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज गिवन इन योर बुक कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के एलिमेंट्स को अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। टू लर्न दिस रिजल्ट, ओके, ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अप्लाई हो सकता है। अभी हमने इसे सेकंड कॉलम में अप्लाई किया है, ठीक है। सो यू विल आल्सो अप्लाई दिस रिजल्ट इन एनी कॉलम और एनी रो एंड नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज। तो A12 की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू -1 है, देन इसकी वैल्यू 4 है A22 की, और इसके कोफैक्टर की वैल्यू -5 है। सिमिलरली एलिमेंट की वैल्यू 1 है और इसके कोफैक्टर की वैल्यू 16 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट -25 + 16, देन -9 इज आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ओके। अब आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि -9 ही आएगा या कुछ और आंसर आएगा। आई थिंक इट इज करेक्ट, मेरे हिसाब से करेक्ट है। आप भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। And now student, there are a very important topic is coming in front of you and the name of this topic is singular matrix. So now this time we will discuss about
What is singular matrix? A matrix is called singular matrix if its determinant is zero, otherwise it is non-singular. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, वरना उसको हम नॉन सिंगुलर कह देंगे। ओके, तो इस बिहाफ पर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स के पैटर्न पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको तुरंत डिटरमिनेंट ऑफ ए को जीरो करके किसी वेरिएबल की या किसी अननोन वैल्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सो नाउ आई विल टेल यू ए एग्जांपल व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन टू दिस थ्योरी सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स सी द एग्जांपल। And now there are some example. There are two example in front of you in which you will find the value of variable x. So in the first example, it is a singular matrix. There are a matrix is given and this matrix is singular, and we know that when a matrix is singular then its determinant is zero. तो आपने इसके determinant को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि ये singular matrix given है। ओके, and now you expand it। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 बन जाए 8 प्लस 8x minus 7 3 is 21 and minus minus plus 7x is equal to 0, and then you will get 7 and 8 15x minus 21 and plus 8 is minus 13, and the value of x is come 13 upon 15. So it is the value of x for this matrix. And now similarly there are example number second, and in this example again it is given that it is a singular matrix, and now you will find the value of this variable x. Now let's see the solution. You just substitute determinant of a is equal to 0, and now it is x minus 1 1 1 is also equal to 0. The determinant of this matrix is 0, and now you expand it along to the first row by using sign convention. So you just write here x minus 1, and then you eliminate this row and this column, so these values are left, these four values. So x minus 1 both are multiplied to each other, and minus sign, there are 1 and 1 is also multiplied, and after that there are minus sign is come, and then you will eliminate this column and this row. So x minus 1 is come, and last one there are plus sign is come with 1, and this column and this row is removed, 1 minus, and there are minus sign when you multiply these both. So minus x plus 1 is come is equal to 0, and now you will solve it. It is x minus 1, and it is x square minus 2x plus 1, it is minus 1, and now it is x minus 2, and there are 2 minus x is equal to 0, and now you again simplify it, but before you cut this 1 and 1, and now you multiply these two brackets, and you will get x cube and then minus 2x square, and here it is minus x square and it is plus 2x. Okay, and then there are minus x plus 2 is come, and the last there are 2 minus x is equal to 0, and now x and x is, and now something is cancelled or not? Yes, 2x and x 2x minus 2x is cancelled, and there are x cube, it is minus 3x square, and there are plus 4 is come, and now it is cubic equation. So what is the way to solve this type of problem? I think you know that. You substitute here the values of x. When it is comes 0, then it is the first value of x. So you will put here x is equal to minus 1 to make 0 here, minus 1 cube, it is minus 1 square, plus 4 is equal to 0. So I think it is minus 1 minus 3 plus 4, it comes 0. So x plus 1 is a common factor. X plus 1 is a common factor of this polynomial. Common factor of this polynomial x cube minus 3x square plus 4. Okay friends, so now you divide this x plus 1 into x cube minus 3x square plus 4. So you will get x square, then it become x cube plus x square, it is minus minus, it is cancelled out,
it is minus 4x square plus 4. Now it is minus 4x. Okay, so minus 4x square and it is minus 4x. So again these both values are cancelled and you just write 4x plus 4, and this time the quotient is 4. So now it comes 4x plus 4 and both are cancelled and remainder as 0. So what is the quotient? It is quotient x square minus 4x plus 4 is equal to 0, and it is x minus 2 whole square. So x gives you 2. So the first value of x is come minus 1 and the second value is 2. So these are the two values and it is your answer also. So I think you understand that. ये जो क्वेश्चन आपने देखा, हालांकि यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, और क्यूबिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना आपको शायद भूल गए होंगे, तो आपको शायद वापस से याद आ गया होगा कि पहले हम उस एक्सप्रेशन को जीरो बनाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक आती है, और यहाँ लकीली जो क्वाड्रेटिक आई ये ऑटोमेटिकली x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर जो x के दो वैल्यूज आए वो इक्वल आए, मीन्स प्लस 2 एंड प्लस 2। तो यहाँ पर हम केवल कंसीडर दो वैल्यूज को करेंगे, एक तो माइनस 1 जो पहले जीरो बनाने के काम में है, और सेकंड वैल्यू 2। सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आई एम सेइंग यू these are the some basic concept of determinant। ये जो हमने आज किए वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिटरमिनेंट के किए। डिटरमिनेंट क्या होती है, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आप सभी को पता है इन 12th क्लास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट गिव्स यू आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स इन एवरी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड के एग्जाम में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कुछ 10 के आसपास आपको मार्क्स देते हैं, और ये बहुत सिंपल मार्क्स होते हैं जो आपको गेन करने होते हैं। आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, और आपको अच्छे से अच्छा इस टॉपिक में फोड़ के आना है। इट मीन्स आपको अच्छे से अच्छा करके आना है। सो नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस क्लास। अब मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, और आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, अगर आप इन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं और हर टॉपिक को समझ रहे हैं, तो आपको इन वीडियोस को आगे भी शेयर करना है, आगे इन वीडियोस को भेजना है अपने फ्रेंड्स के पास, और जो भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट लेना चाहे उन सब के पास इस वीडियो को आपको शेयर करते रहना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक भी करें, जिससे मैं आगे इन सभी बातों से मोटिवेट होकर आपको नए नए वीडियो देता रहूं, जिसमें आप सभी को बेनिफिट मिल सके। So now goodbye and we will meet soon.